Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have started with the chapter that is excretory product and its elimination. We have said that what is excretion? The removal of the metabolic waste, the nitrogenous waste from the body for having an osmoregulation or keeping a balance of salt and fluid concentration in our body is the process of excretion. We said that different organisms have different types of excretory products. मतलब organisms जो होते हैं, they have different types of excretory products. The most common one and the most toxic which is easily formed is the ammonia. अमोनिया जो है वो एमिनो एसिड के डीएमिनेशन से बनता है और ये जो अमोनिया है that is eliminated with a large amount of water. Mostly the aquatic organisms and the bony fishes are the one which will be eliminating the ammonia. Some organisms like mammals have an ability to convert this ammonia to urea by the urea cycle which takes place in the liver. मतलब यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो लीवर में होता है और उसका एलिमिनेशन जो है वो किडनी से होता है. ये यूरिया फॉर्म करने का रीजन यही है टू कंजर्व सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जब अमोनिया रिलीज करते हैं तो वो बहुत सारे पानी के साथ एलिमिनेट करते हैं, जबकि यूरिया लेस टॉक्सिक होता है और इसीलिए इट कैन बी stored in the body for some time and then after it is eliminated. Even our blood will be having certain concentrations of urea. As it is less toxic, it will be circulating and from time to time it will be eliminated in the urine. Right? So not a large amount of water is going to be eliminated in these organisms and water can be conserved in these organisms. Because elimination of large amount of water would be responsible for reducing our volume of blood. And therefore it is very important to maintain blood volume and therefore it is important to maintain the volume of the body fluids. Other than that, we can say that the third type of organisms were excreting uric acid. They were known as uricotelic. यूरिक एसिड पानी में बिल्कुल भी सल्यूबल नहीं होता और वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में रिलीज होता है विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. यूरिक एसिड बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता, इसलिए बर्ड्स, स्नेल्स या रेप्टाइल्स जो बहुत ही ज्यादा टेरेस्ट्रियल डेजर्ट हैबिटेट में रहते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स रिलीज करते हैं फॉर एलिमिनेटिंग देयर नाइट्रोजनस वेस्ट. मैंने ये भी कहा था कि क्यों नाइट्रोजनस वेस्ट ही, क्योंकि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो स्टोर हो जाते हैं पर एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स एक्सेस में स्टोर नहीं होते और स्टोर नहीं होते इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, जो यूजफुल नहीं है उन्हें इमीडिएटली रिमूव करना पड़ता है एंड दैट इज व्हाई नाइट्रोजनस वेस्ट इज बीइंग एलिमिनेटेड. बट डू ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव सेम टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? नो. Organisms will be having different types of excretory organs, right? So let us have a look on different types of excretory organs in different organisms. वैसे तो हमने ये चीज पहले एनिमल किंगडम में डिस्कस की ही है, right? But we are again repeating that organisms have different types of excretory organs. Invertebrates are going to have a simple tubular structures. जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा जैसे ऑर्गेनिजम्स जो है उनके पास कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होने वाला, राइट? पोरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, तो इनके पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होता है कि देयर इज अ ट्यूब लाइक और चैनल लाइक स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच एक्सक्रीशन अकर्स. नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, राइट? फिर उनसे आगे जाते हैं तो थोड़ा प्लैक
प्लैटीहेल्मिन्थस पे अगर जाएंगे तो उनके पास सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसे कि फ्लेम सेल्स होते हैं। वो हमारी किडनीज की तरह बहुत ज्यादा डेवलप तो नहीं है, but still they perform the activity of excretion. Whereas vertebrates have complex tubular structures and that is the kidneys. क्योंकि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके पास होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है दे आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड दीज ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द किडनीज। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स जो है उनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन में किडनीज हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट्स के पास कुछ सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट। So first of all, let us talk about platyhelminthes. Platyhelminths. अब platyhelminths में एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लेनेरिया, राइट? तो इनके पास क्या होता है? platyhelminths और प्लेनेरिया जो एग्जाम्पल है, they have presence of flame cells. What do they have? Flame cells, which is also known as protonephridia. What it is called? Flame cells or protonephridia. ये flame cells जो होते हैं, these are just cellular structures which help in elimination. ना ही सिर्फ platyhelminths के पास, but even with organisms like rotifers, some annelids and cephalochordates like Amphioxus. इन सब के पास, किनके पास? प्लैटीहेल्मिन्थस जैसे कि प्लेनेरिया, रोटिफर्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिलीड्स होते हैं, सारे नहीं, सम ऑफ द एनिलीड्स एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इन सब के पास क्या है? इन सब के पास फ्लेम सेल्स है या तो प्रोटोनेफ्रीडिया है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ये तो इनकी बात हुई। चलो आगे बढ़ते हैं टू द एनिलीड्स, राइट? व्हाट डू मोस्ट ऑफ द एनिलीड्स हैव एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन? Annelida will be having nephridia, right? And nephridia is responsible for maintains ionic and fluid balance of the body. What does it maintain? Ionic and the fluid balance. ठीक है, आयंस का बैलेंस और फ्लूइड का बैलेंस, इसे कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। Ionic and fluid balance is together known as osmoregulation. तो nephridia not only eliminates the nitrogenous waste from the body, but also it is responsible for maintaining the ion balance, मतलब salt का concentration and salt के साथ साथ water या body fluids का concentration maintain भी कौन करता है? The nephridia. These nephridia were of different types if you remember. Septal nephridia, integumentary nephridia and pharyngeal nephridia were the different types of nephridia present with the annelids. Third, moving on to what is present in the arthropoda. आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स लाइक कॉकरोच, राइट? तो अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं, सो कॉकरोचेस विल बी हैविंग Malpighian tubules. What do they have? Malpighian tubules. वैसे तो आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे इंसेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, राइट? सम आर एक्वेटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल, दोनों इंक्लूड होते हैं। पर अगर हम आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच की बात कर रहे हैं तो इनके पास होते हैं Malpighian tubules जो नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं और फ्लूइड और आयन बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करते हैं। आफ्टर आर्थ्रोपोडा देयर आर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रॉन्स। वैसे तो प्रॉन्स भी किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं, बिकॉज प्रॉन्स
आर अ स्पेशल क्लास ऑफ, मतलब एक स्पेशल क्लास में आते हैं इन द आर्थ्रोपोडा फाइलम। तो प्रॉन्स जो है उनके पास स्पेशली ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एज देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या प्रेजेंट है? ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स। वैसे तो हर एक ऑर्गेनिज्म में थोड़े बहुत वेरिएशंस तो रहने वाले हैं कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थोड़े बहुत अलग होंगे। मोलस्कास हैव प्रेजेंस ऑफ किडनीज, दो देयर किडनीज आर नॉट वेरी सिमिलर टू आवर किडनीज, बट स्टिल हर एक ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें अलग अलग तरह के excretory structures present होते हैं, but the overall purpose of any excretory structure is to maintain fluid ionic balance and eliminate the nitrogenous waste, right? So this was different types of phylums with different excretory structures. Now we are heading towards the topic that is human excretory system. अब हम आगे बात करते हैं about human excretory सिस्टम, राइट? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऐसा क्या स्पेशल है इन सारे सिस्टम से? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इट इज क्वाइट वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड जो सिस्टम है उनमें हमारे पास वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ ureter, urinary bladder, and lastly urethra. The human excretory system has the presence of a pair of kidneys, there is presence of ureters, urinary bladder and urethra. These four structures are included in the human excretory system. ठीक है? Now a pair of kidneys, अगर हम kidneys की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम kidneys के structure से बात करेंगे। We will be talking about the structure of kidneys. So kidneys in humans are having certain characters, that is it is reddish brown in color and the shape of the kidneys is बीन शेप। ठीक है? कैशू शेप जो होता है, कैशू नट का जो शेप होता है उस शेप के किडनीज होते हैं। अगर हम उनके लोकेशन की बात करें, वेयर आर किडनीज लोकेटेड? सो किडनीज आर लोकेटेड बिटवीन द लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्रे। अगर हम हमारी वर्टिब्रल कॉलम को कंसिडर करें तो नेक में जो वर्टिब्रे है उन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रे कहा जाता है। उसके बाद थोरैसिक कैविटी के जितने वर्टिब्रे हैं उन्हें थोरैसिक वर्टिब्रे कहा जाता है। उसके बाद आते हैं लंबर वर्टिब्रे जो हमारे बैक में होते हैं। ठीक है? तो वैसे ही थर्ड मतलब लास्ट जो थोरैसिक वर्टिब्रे और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में ऑन द डॉर्सल साइड, नॉट ऑन द वेंट्रल साइड, ऑन विच साइड? डॉर्सल साइड in the abdominal region these kidneys are located. So kidneys location of the kidneys is between last thoracic and third lumbar vertebrae. Last thoracic and the थर्ड लंबर वर्टिब्रे, इनके बीच में प्रेजेंट है किडनीज टूवर्ड्स डॉर्सल साइड इनर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है? सो एब्डोमिनल वॉल जो है हमारी, राइट, एब्डोमिनल जो रीजन है उसमें डॉर्सल साइड मतलब पीछे की तरफ लोकेटेड होते हैं जो हमारी एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड है। ठीक है? सो वी आर गोइंग टू फर्दर डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द kidneys, but meanwhile just remember they are reddish brown in color, they are bean shaped structures and they are located between the last thoracic and the third lumbar vertebrae, and
The last actually kidneys are also protected by the last ribs. जो floating ribs होती हैं, मतलब जो last ribs होती है हमारे पास, वो जो है वो kidney के delicate organ को protect भी करती है. So we are further going to continue about the structure of the kidneys. So further continuing about the human excretory system, which said that the kidneys bean shaped structures located between the last thoracic and the third lumbar vertebrae. ठीक है, तो किडनीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी उनके डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं. दैट each kidney is about 10 to 12 centimeter long and it is having about 5 centimeter width and 2 to 3 centimeter is the thickness of the kidneys, right? तो किडनीज जो होते हैं वो अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर जितने स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं. किडनीज को रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है क्योंकि वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है of the abdominal wall attached to the peritoneal lining of the abdominal wall. Peritoneal मतलब जो fold होता है स्किन का, उससे ये एक तरफ से covered होते हैं और एक तरफ से free होते हैं. So 10 to 12 centimeter is the size, 5 to 7 centimeters is the width and 2 to 3 centimeter is the thickness of the kidneys. And weight of the kidneys is also about 120 to 170 grams. राइट, थोड़ा वेट वेरिएबल होता है 120 to 170. किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड, राइट, जहां पे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स रिलीज होते हैं. मतलब जो इमरजेंसी हार्मोन्स है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो इमीडिएटली रिलीज होते हैं थ्रू द एड्रीनल ग्लैंड्स व्हिच आर सिचुएटेड अबाउट द किडनीज. नाउ 120 to 170 ग्राम इज द वेट ऑफ द किडनीज. अगर किडनीज के आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द किडनीज इज नोन एज द रेनल कैप्सूल. आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज द रेनल capsule. So we will mention the first point. Outermost covering of the kidneys is renal capsule. Renal capsule जो होता है वो एक fibrous connective tissue है, right? तो fibrous connective tissue मतलब the tissue which is going to give the strength and shape to the structure of the kidney. So outermost fibrous connective tissue covering the kidneys is known as the renal capsule. अगर हम kidneys को transverse section में observe करें तो we will be able to observe a concave side of the kidneys, right? So the concave side of the kidneys has a opening. And this opening is known as the hilum. जो कॉन्केव साइड है, कॉन्केव साइड, राइट, ये जो है वो पूरा एक कवरिंग मतलब किडनीज का स्ट्रक्चर है, तो उसका ये जो एंड है वो कॉन्केव एंड है. तो कॉन्केव साइड पे एक ओपनिंग है. ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को कहा जाता है हिलम, राइट. सो हिलम क्या काम करता है? तो हिलम इज द साइट for the entry and exit. Entry and exit of what? Entry of a renal artery and exit of a renal vein, right? तो यहां से renal artery जो है that will carry the oxygenated blood to our kidneys, right? And there is one more renal vein. So we can say that the blood vessels will be entering and exiting through what? Through the hilum. Moreover, what else will be exiting? Ureter. Ureter also exits out of the hilum. So it is the site for entry and exit of
blood vessels and nerves and exit for ureter. तो यूरेटर जो है उसका एग्जिट होने वाला है और ब्लड वेसल्स एंटर और एग्जिट मतलब रेनल आर्टरी विल एंटर एंड रेनल वेन विल एग्जिट. साथ साथ में जो नर्व्स है राइट, जो नर्व फाइबर्स है, नर्व सेल्स है, दे विल आल्सो बी कंडक्टेड और एंटरिंग थ्रू द hilum region. Now coming inner to the hilum, you can observe an open space over here, right? एक cavity like structure यहाँ पे दिख रहा है और इस cavity like structure को कहा जाता है renal pelvis. Okay, so we will mention that hilum opens into a small space which is known as the renal pelvis, right? तो जब यूरिन फॉर्म हो जाता है तो यूरिन फॉर्म होने के बाद it is first entering into the pelvis region and then after it enters into the ureter. तो pelvis region जो है it is a small cavity like structure inner to the region of the hilum. Now this pelvis is having several projections. छोटे छोटे ये जो projections दिख रहे हैं वो pelvis से है and these projections are known as calyces. The projections are known as calyces. So renal pelvis leads to small projections which are known as renal calyces. इन्हें क्या कहा जाता है? Calyces कहा जाता है. ठीक है. Now internally the kidney has two regions. ये जो बाहर का रीजन है इसे कहा जाता है कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स. और अंदर का जो रीजन है जहां पे आप ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इस रीजन को कहा जाता है मेड्यूला. सो वी कैन से दैट इंटरनली kidneys have outer region called cortex and inner region which is known as medulla. बाहर का रीजन क्या है? कॉर्टेक्स. और अंदर का रीजन क्या है? मेड्यूला है. ठीक है. अब ये जो मेड्यूला रीजन है उसमें आप ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स जो देख रहे हो, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है मेड्यूलरी पिरामिड्स. क्या कहा जाता है? मेड्यूलरी पिरामिड. सो मेड्यूला हैज प्रेजेंस ऑफ मेड्यूलरी पिरामिड. और ये मेड्यूलरी पिरामिड किससे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड टू द कैलिसेस. ओके. सो इंटरनली द किडनी हैज आउटर पार्ट कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट कॉल्ड मेड्यूला. ठीक है. और ये जो मेड्यूला है वो कहाँ पे है? ये जो यहाँ पे पिरामिड्स लोकेटेड है उस रीजन को मेड्यूला कहा जाता है. पर आप देख सकते हो दैट कॉर्टेक्स जो है इट ऑल्सो एक्सटेंड्स इनसाइड. कॉर्टेक्स अंदर की तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है. सो इंटर दैट इनर एक्सटेंशंस ऑफ द कॉर्टेक्स in the region of the medulla are known as columns of Bertini. What are they known as? Column of Bertini. So the inner extension of the cortex in between the medullary pyramid is known as column of Bertini. What it is called? Column of Bertini. तो कितने स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे? देखिए, सबसे बाहर का कवरिंग रेनल कैप्सूल, कॉन्केव साइड पे ओपनिंग हिलम, हिलम से एंटर होती है रेनल आर्टरी, एग्जिट होती है रेनल वेन, एग्जिट होता है यूरेटर, एंटर और एग्जिट होते हैं कई नर्व फाइबर्स. ठीक है. हिलम ओपन्स इनटू अ स्मॉल कैविटी जिसे कहते हैं रेनल पेल्विस. रेनल पेल्विस विल बी लीडिंग टू स्मॉल प्रोजेक्शंस. प्रोजेक्शंस को कहा जाता है कैलिसेस. Internally, the kidneys have two regions, that is outer cortex, inner is the medulla. Medulla में located है medullary pyramids. Cortex जो है वो medullary pyramids के बीच में extend कर रहा है और उसे कहा जाता है
column of Bertini. What it is called? Column of Bertini. So that was the structure of kidneys. अब हम बात करते हैं कि किडनीज में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो होता है नेफ्रॉन. किडनीज में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन्स. तो नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे बात करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास.